केंद्र सरकार ने 11 अगस्त 2023 को संसद में 3 विधेयक पेश किए। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 लेगा जगह। भारतीय साक्ष्य कानून की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लेगा और आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जगह लेगा। आईपीसी की धाराओं का क्या मतलब है, उसे मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। धारा 307 हत्या की कोशिश, धारा 302 हत्या का दंड, धारा 376 बलात्कार रेप, धारा 395 डकैती, धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य, धारा 396 डकैती के दौरान हत्या मर्डर, धारा 120 षड्यंत्र रचना धोखा देना किसी को, धारा 365 अपहरण करना, धारा 201 सबूत मिटाना, धारा 34 सामान्य आशय, धारा 412 छीना झपटी, धारा 378 चोरी, धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव मॉब इकट्ठा होना, धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना, धारा 300 हत्या करना, धारा 309 आत्महत्या की कोशिश, धारा 310 ठगी करना, धारा 312 गर्भपात कराना अबॉर्शन कराना, धारा 351 हमला करना, धारा 354 स्त्री लज्जा भंग, धारा 365 अपहरण, धारा 415 छल करना, धारा 445 गृह भेदन, धारा 494 पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह, धारा 499 मान हानि की धारा लगना, किसी ने किसी के साथ कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर मान हानि का दावा ठोक दिया। जय हिंद, जय भारत। You know that ISRO is in a news in international media. Why? ISRO studies space situation around the moon. There is a two picture, one in left side, left to right, that is Earth as viewed by lander, imager LI, and also camera on board Chandrayaan 3 on the day of the launch, July 14, 2023, and moon as viewed by lander horizontal velocity camera LHVC on board Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 a day after the lunar orbit insertion August 6, 2023. As Chandrayaan, you know that 3 moves closer to the moon and as lunar exploration generation renewed global interest and Indian Space or Research Organization is very important contribution in international media also. ISRO has undertaken a detailed assessment of the current space situation around the moon. You know that ISRO said assessment was done against the backdrop of more intensified activities around the moon over the next few years. That includes ARTEMIS mission, Artemis. I would like to tell you that future missions are likely to go beyond scientific exploration and involve resource utilization for commercial purposes. A better understanding of the environment will help avoid close approach threats in plenty orbits, ISRO said. Detailing diverse aspects of traffic around the moon, the space agency noted that as of July 2023, there are 6 active lunar orbiters: ARTEMIPS PI or P1 and Artemis P2 lunar. You know that Artemis P1 and Artemis P2 lunar reconnaissance orbiter LRO and Capstone, all from NASA, ISRO Chandrayaan 2 and Korea Pathfinder lunar orbiter KP-LO. The Japanese spacecraft Auna
placed in a lunar orbit in 2009. Also, Chandrayaan first launched in 2008 are the two defunct spacecraft. Russia's Luna 25 with a lander and rover is expected to be in a 100-kilometer lunar orbit by August 16 and landing on Moon's south pole by August 21 or 23. Chandrayaan 3 is scheduled for a landing on August 23. ISRO highlighted 11 upcoming missions to the moon as part of the assessment, including Lunar Trailblazer USA 2023, China's Lunar Exploration Program 2024-27, a Lunar Polar Exploration Mission, India's Japan after 2024. Though there are only a handful of orbiting spacecraft, frequent conjunctions make collision avoidance maneuvers necessary. Till July 2023, Chandrayaan 2 launched in 2019 also has performed 3 such maneuvers to mitigate critical close approaches with a LRO and KPLO ISRO sat. For Chandrayaan 3, the propulsion module is expected to orbit around the moon in the circular LLO low lunar orbit of the about 150 km altitude. For many years to come, the majority of the lunar landers are also likely to temporarily reside in LLO, typically for a few days or a weeks. Before landing, the space agency opened or revealed this message to the international media. Critical analysis of each of the lunar bound orbit lowering maneuver are also being performed to assess potential risk of close approaches with the other lunar orbits. Jai Hind, Jai Bharat. In this video lecture, I would like to tell you very important news regarding Earendel. You know that Erendel. Earendel. Earendel is a star. It is the furthest star from the Earth. So, let's start. James Webb Space Telescope sees furthest star Earendel in a new light. NASA shared the photo. NASA's James Webb Telescope has taken a shot or shoot of Earendel, the farthest star known, using a space trick called a gravitational lensing. This breakthrough helped us to explore the early universe and the first star. It is very important. You know that NASA's James Webb Space Telescope continued to capture awe-inspiring images. In the latest, it caught a glimpse of the most distant star known in the universe called Earendel. Earendel, Erendel. Earendel. Earendel is a very famous distant star. Following in the footsteps of the iconic Hubble Space Telescope, NASA's James Webb Space Telescope has looked at the furthest star ever detected, called a Earendel. This star was first glimpsed using the Hubble Space Telescope, and Webb's special camera called NIRC cam or NIRCam has zoomed in on it, now revealed it to be a super hot, super bright B-type star, much hotter than our sun. A star hotter than the sun is very famous. Earendel is in a sunrise arc galaxy, which is so far away that we can only see it because of trick of the nature and technology. This trick is called a gravitational lensing. It's a very fantastic trick. Webb was able to look at the Earendel thanks to a huge group of galaxies called a WHOL whole. Yeah, WHLO 13708. Let me repeat again. WHL 01738. That band space
making faraway things seems bigger. Most of the galaxy looks like a copies due to this banding, but Arendelle appears at just one point of the light. Scientists figured out that Arendelle is extremely tiny, about 40,000 or 4,000 times smaller than what we could normally see. This makes it the most far off star even seen born just a billion years after the Big Bang. Gravitational lensing. You know what is the gravitational lensing? So would you like to tell you a very important technique that is known as gravitational lensing. Arendelle size hints at the possible body star which Webb could detect because it stretched the light of a color Hubble couldn't see. Means Webb fancy camera also shows us the sunrise arc galaxy in detail. It is the most magnified baby galaxy ever seen, with young and old stars as tiny dots. Arendelle sits right in the middle of this galaxy, and it helps scientists learn about star clusters in our own Milky Way galaxy. So, you know that astronauts are still studying Arendelle and sunrise arc using Webb's special camera to learn more about the galaxy's makeup and how far away it is. Webb found a few other far stars using this technique, but none as distant as Arendelle. These findings are like opening a new cosmic door for scientists, letting them explore the early universe and its baby stars. The team hopes this might lead to spotting the very first stars made from the universe basic stuff, hydrogen and helium. That is the composition of these kind of stars. Thanks so much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat. Very important international news regarding NASA. NASA tracks asteroid 2023 PC as it gets closer to Earth. Check speed, size, and more. NASA has detected an asteroid named 2023 PC, which is said to make a close approach to Earth on August 14. Check detail here. What is the detail? As per NASA, a massive space rock called asteroid 2023 PC is rushing toward the Earth at the rapid speed. The data suggested that it is going to make a very close approach to the Earth. According to the Center for Near Earth Object Study, CNEOS, asteroid 2023 PC is coming towards the Earth at the rapid speed of 18,944 kilometers per hour and is scheduled to make its nearest approach to the planet on August 14, 2023. According to NASA's asteroid data tracker, asteroid 2023 PC is expected to come as close as 5 crore 10 lakh kilometer to the Earth. Maybe the asteroid has size of 130 feet. That is very fantastic or huge velocity. As large as a aeroplane. Oh no. As asteroid belong to that 18 group of nuclear Earth object. This may be a dangerous if hit on the Earth. According to NASA's, there is no danger to Earth from this asteroid. Why? However, NASA is still monitoring the asteroid's progress as the gravitational force of Earth can oscillate or occasionally cause deviation. Deviation means divert the path, which may be dangerous. जय हिंद जय भारत। आज लॉन्च हो चुका है रूस का मिशन लूना 25 चांद पर पहले कैसे पहुंचेगा आपको बताते हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू क्वांटम क्लासेस पर। और आजकल बहुत सारे ढेर सारे मैं आपके लिए नए नए वीडियोस नई नई जानकारियां लेके आ रहा हूं।
पिछले 47 साल में, है ना, चांद पर अंतरिक्ष यान भेजने की रूस की ये पहली कोशिश है। रूस ने 1976 में पहला मून मिशन लॉन्च किया था। शुक्रवार को लॉन्च किए गए मिशन के तहत रूस का अंतरिक्ष यान चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा। माना यह जा रहा है कि यहाँ पर पानी हो सकता है, जैसा कि भारत ने बताया था कि पानी होता है, या फिर फ्रॉस्ट के फॉर्म में कह सकते हैं कि बर्फ़ के फॉर्म में पाया जाता है मून के ऊपर। रूस के मून मिशन से पहले 14 जुलाई को भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 भी चांद की सतह पर उतरेगा, लेकिन रूस के इस अभियान की होड़ चीन और अमेरिका के मून मिशन से भी है। क्या कारण है? अमेरिका और चीन ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतारने के लिए एडवांस मिशन शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के मुताबिक लूना 25 को सोयूज़ 2.1 वी रॉकेट से बोस्टोनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया जाएगा। ये जगह मॉस्को से करीब 5,550 किलोमीटर पूर्व में है। सोयूज़ 2.1 वी रॉकेट का ऊपरी हिस्सा लॉन्च करने के 1 घंटे बाद से पृथ्वी की कक्षा से बाहर की ओर धकेलता हुआ चांद की ओर ले जाएगा। अब देखो, लूना 25 में रोवर और लैंडर हैं। इसके लैंडर का वज़न 800 किलो है। लूना 25 पहले सॉफ्ट लैंडिंग की प्रैक्टिस करेगा। इसके बाद ये चांद की मिट्टी के नमूने लेने और उनका एनालिसिस विश्लेषण करने का काम करेगा। साथ वो लंबे समय तक चलने वाली रिसर्च भी करेगा। लूना 25 सोयूज़ 2.1 वी रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। ये 46.3 मीटर लंबा है। 10.3 मीटर व्यास वाले इस रॉकेट का वजन 313 टन है। चारों चरणों में इस रॉकेट ने लूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार कक्षा में छोड़ दिया। कैसा है लूना 25? क्या है मकसद? जानते हैं इस जानकारी से। लूना 25 का आकार छोटी कार के बराबर है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ये 1 साल तक काम करेगा। हाल के कुछ वर्षों से, है ना, नासा और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियों ने बर्फ़ होने के निशान पाए हैं और रूस के मून मिशन के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। रूस ने कहा कि ये यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाकर उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने में नाकाम रहे। इसलिए आजकल बौखलाए हुए, तिलमिलाए हुए हैं। रूस पिछले दशकों से इसकी तैयारी कर रहा था। अगर उसका मून मिशन सफल रहता है तो ये उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों की स्पेस एजेंसियों से रूस की एजेंसियों का आपसी सहयोग खत्म हो चुका है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लूना 25 में अपना पायलट जी नेविगेशन कैमरा जोड़कर से टेस्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इसे ये योजना छोड़ देनी पड़ी। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले शख्स थे। रूस सोवियत संघ के इस लूना 2 मिशन 1959 में चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना था। और आपको बता दें कि 1966 में लूना 9 मिशन चांद पर रूस का पहला सॉफ्ट लैंडिंग मिशन था। और रोसकोसमोस ने बताया कि मिशन का मकसद सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी विकसित करना है, साथ ही चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर शोध करना और पानी समेत दूसरी ज़रूरी चीज़ों को खोज करना भी इसका मकसद है। देरी से लॉन्च, लेकिन चंद्रयान 3 से पहले कैसे चांद पर पहुंचेगा रूसी मिशन, इससे संबंधित बातें आपको बताता हूं। रूस के स्पेस चीफ यूरी बोरिसोव ने बताया कि लूना 25 इसी महीने की 21 अगस्त को लूना 25 मिशन 11 अगस्त शुक्रवार को सुबह 4 बजे लॉन्च किया गया। पहले इसके, है ना,
23 अगस्त के चांद के सतह को छूने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसके 21 अगस्त को वहां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जबकि चंद्रमा की सतह छूने के लिए निकला चंद्रयान 3 बीते महीने 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतर सकता है। सवाल ये है कि आखिर लगभग एक महीने बाद भी लॉन्च होकर लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चांद की सतह छूने में कैसे कामयाब होगा। रूसी मिशन की ओर 5.5 दिन का सफ़र पूरा करेगा और वहां 100 किलोमीटर के कक्ष में 3 से 7 दिन बिताने के बाद चांद की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान 3 मिशन रूसी लूना 25 मिशन के बाद चांद की सतह पर पहुंच सकता है। इसकी वजह से चंद्रयान 3 लूना 25 मिशन की तुलना में लंबा रास्ते से सफ़र कर रहा है। दरअसल चंद्रयान 3 अपने सफ़र के जरिए पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का लाभ लेना चाहता है। इससे यह काफ़ी कम ईंधन पर सफ़र करेगा। हमने लूना 25 के जल्दी चांद पर पहुंचने से जुड़े सवालों पर रीचिंग फॉर द स्टार्स इंडियाज़ जर्नी टू मार्स एंड बियॉन्ड के लेखक और विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला से बातचीत की। उन्होंने कहा कि रॉकेट के ताकतवर होने का मामला है। रूसी रॉकेट ज़्यादा ताकतवर है और बड़ा रॉकेट ज़्यादा खर्चीला है, इसलिए भारत ने छोटे रॉकेट के जरिए अपना मकसद साधने का प्लान बनाया। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत ने मौका नहीं गंवाया। इसने अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद अपने मिशन को लॉन्च कर दिखाया। ये भारतीय वैज्ञानिकों की अतिरिक्त उपलब्धि ही मानी जाएगी, जबकि रूस की तुलना में ये अंतरिक्ष मिशन के मामले में छोटा खिलाड़ी है। इसरो ने लूना 25 की सफल लॉन्चिंग पर रॉसकोमोस को बधाई भी दी है। इसरो ने ट्वीट कर लिखा है कि लूना 25 की सफल लॉन्चिंग पर रॉसकोमोस को बधाई। अपनी अंतरिक्ष यात्रा में मिलने वाली जगह मिलना मतलब इस मिलने की जगह का होना अद्भुत है। जय हिंद, जय भारत। एक और बात बता दी, पहली बार चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग होगी। रूस इससे पहले 1976 में चांद पर मिशन लूना 24 पहुंचा चुका है। अभी तक मून मिशन के तहत छोड़े गए अंतरिक्ष यान इसके इक्वेटर तक ही पहुंचते हैं। पहली बार होगा कि कोई मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। क्यों खास है यह मिशन? 1976 में लॉन्च किया गया लूना 25 चांद की करीब 170 ग्राम मिट्टी लेकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटा था। अंतरिक्ष विज्ञानी व्लादिमीर सार्डिन का कहना है कि लूना 25 मिशन की सफलता संभावना 50% है। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा पार्टीशन ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ जानकारी। क्या नेहरू और पटेल ने बंटवारे में जल्दबाजी दिखाई थी? ये तो लोगों का मानना है, लेकिन उस टाइम का जो सिनेरियो था काफ़ी टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड था। तो जो भी हुआ था उस टाइम पर उस परिवेश में वो ठीक ही था। पटेल नेहरू रोल इन पार्टीशन ऑफ इंडिया को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बात 14-15 जून की है। और 1948 आज़ादी की सुगंध महसूस होने लगी थी। पूरा होने को था लोगों का सपना, आज़ाद भारत की दहलीज पर रखने का सपना, हवाओं में सांसें लेने का बरसों पुराना सपना। लेकिन एक डर भी था, क्या जिन्ना की कोशिशें सफल हो जाएंगी? देश को बांटने में फ़िरका परस्त कामयाब हो जाएंगे? और राजनीति की दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सोच की धारा हो या फिर मध्य मार्गी, कोई नहीं चाहता था कि बंटवारा हो। और आपको बताएं कि देश के दिलों में दरार पड़ चुकी थी। इसे पाटने के लिए दो तरह की कोशिशें हो रही थीं। हालांकि कांग्रेसी धारा के अगुआ लोगों का एक वर्ग मान चुका था कि इस दरार को पाटा नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने आर्यावर्त के बीच धार्मिक आधार वाली 4 दीवारी बनाने की बात मान ली थी। उन्होंने इस बात के लिए अपने घुटने टेक दिए थे मुसलमानों की जिद के आगे। बेशक यह प्रस्ताव तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की उस नीति की देन था जिसके तहत मजबूरी में आज़ादी दे रही अंग्रेज सरकार बाद के दिनों में फ़ायदा उठाने की तैयारी में थी। ब्रिटिश सरकार को लगता था कि भले ही आज़ादी मिल जाए, लेकिन विभाजित राष्ट्र अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए भविष्य में अंग्रेज़ों को पूछना ही पड़ेगा कि कौन सा काम कैसे किया जाए
तब अंग्रेज फूले नहीं समाएंगे। देश का भाग्य बदलने वाली 1942 की क्रांति के युवा नायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बंटवारे को अंग्रेज सरकार की कारस्तानी मान रहे थे। मतलब अंग्रेज सरकार ने कुछ न कुछ तो गड़बड़ की थी, उसी की मानसिकता थी। लोहिया ने विभाजन के कारणों को लेकर एक पुस्तक भी लिखी है, भारत विभाजन के गुनहगार। मतलब भारत के कौन कौन से ऐसे गुनहगार हैं जिन्होंने विभाजन में पार्टिसिपेट किया और वो जनता को बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इस पुस्तक में उन्होंने बंटवारे के लिए सिर्फ जिन्ना और उनकी राजनीति को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि वह इतिहास को भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। लोहिया मानते हैं कि 600-700 साल के बीच हिंदू मुस्लिम एकता का चाहे जितना भी पाठ पढ़ाया गया हो, लेकिन अकबर और जहांगीर के शासन को छोड़ दें तो दिलों की दरार फटी नहीं थी और मुस्लिमों के दिलों में हिंदुओं के लिए कट्टरवाद था। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे हिंदू। नन्हे से मुसलमान और जायज़ हिंदुओं को पसंद नहीं करते थे। अब हिंदुओं की समस्या क्या है? वो पूरे वर्ल्ड में कोई देश ही नहीं, तो वो जाए तो जाए कहाँ। भारत के हिंदू और मुसलमान एक ही इतिहास के प्रति भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। ऐसे हिंदू बिरले ही होंगे जो एक मुसलमान शासक या इतिहास पुरुष को अपने पुरखों के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि उसी तरह का एक मुसलमान बिरलाई होगा जो कि हिंदू इतिहास पुरुष को अपना पुरखा माने। लोहिया एक तरह से भारत विभाजन के लिए दोनों कौमों और धर्म के मानने वालों की इतिहास दृष्टि को बुनियाद मानते हैं। उनका कहना है अगर दोनों कौमों ने इतिहास की एक जैसी व्याख्या स्वीकार की होती, समझ रहे ना आप, तो वे शांति के साथ रह रही ही होती और देश विभाजन का सवाल ही नहीं उठता। तो क्या यह मान लें कि सिर्फ इतिहास को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों का अपना अपना नज़रिया ही भारत के बंटवारे का जिम्मेदार रहा? लेकिन इससे जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं कुछ और भी कहती हैं। वो घटनाएं इस प्रकार से हैं कि जब विभाजन के प्रस्ताव को कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकार कर लिया, तब गांधी नौकाखाली में थे। हिंदू मुस्लिम दंगों की आग जो जल रही थी बुझाने के लिए दिल्ली से दूर रहे गांधी को विभाजन का आभास तक नहीं हुआ। उन्हें जब जानकारी मिली तो उन्होंने कठोर बयान दिया था, बंटवारे या बंटवारा राय उनकी लाश पर ही होगा। गांधी जी के इस बयान से बंटवारे को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर चुके कांग्रेसी नेता हिल गए थे। 15 जून 1947 दिल्ली की तपती गर्मी मशहूर है और गर्मी की इसी दोपहर को कांग्रेस कार्य समिति वर्किंग है ना जो कमेटी है उसकी विभाजन मतलब उन्होंने जब मीटिंग में विभाजन का प्रस्ताव मंजूर कर दिया। हालांकि यह बैठक एक दिन पहले यानी 14 जून को तब शुरू हुई जब बाहर तेज तपिश भरा मौसम था और अंदर विभाजन के प्रस्ताव की तुर्शी। कार्य समिति की बैठक में सदस्यों के अलावा 2 और लोगों को बुलाया गया था। वो थे सन 1942 के आंदोलन के हीरो जयप्रकाश नारायण और लोहिया, राम मनोहर लोहिया। लोहिया के मुताबिक बैठक में महात्मा गांधी ने बंटवारे के प्रस्ताव पर सवाल उठाया। लोहिया ने लिखा तो नहीं है, लेकिन बैठक में गांधी का जैसा सुर रहा, जैसी उनकी आवाज़ रही, जैसा उनका मत रहा, उससे लगता था कि वह भी बेबस हो चुके थे। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में माउंट बेटन योजना की जानकारी पहले ना दिए जाने के लिए सीधे वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछा। दोनों में से किसी ने उन्हें सही और सीधा जवाब नहीं दिया था। इसके पहले कि महात्मा गांधी अपनी बात पूरी कह पाते, नेहरू ने तनिक आवेश में आकर बीच में उन्हें टोका और कहा वह उनको पूरी जानकारी बराबर देते रहे। महात्मा गांधी अवाक रह गए, सरप्राइज्ड हो गए कि महात्मा गांधी ने के दोबारा दोहराने पर उन्हें विभाजन की योजना के बारे में जानकारी नहीं थी। नेहरू ने अपनी पहले कही बात को थोड़ा सा बदल दिया। उन्होंने कहा कि नौखाली इतनी दूर है और कि वो उस योजना के बारे में विस्तार से न बता सके, है ना। उन्होंने गांधी जी को विभाजन के बारे में मोटे तौर पर लिखा था। साफ है कि महात्मा गांधी को विभाजन योजना के बारे में अंधेरे में रखा गया था, कहीं गांधी जी की बात दुनिया मान न ले। इसलिए उनके नाम लिखे पत्र को नेहरू ने बाद में प्रकाशित कराया, लेकिन लोहिया मानते रहे कि उन पत्रों में साफ कुछ भी नहीं लिखा था। झूठ था, झूठ का पुलंदा था वो पत्र।
लोहिया का निष्कर्ष है कि विभाजन को लेकर पटेल और नेहरू के बंटवारे की बात पूरी तरीके से गांधी जी नहीं मानी थी और इसे एक बचकानी हरकत माना था। कार्य समिति की बैठक में गांधी जी को जब आभास हो गया कि कांग्रेस के दोनों सर्वोच्च नेताओं ने विभाजन की योजना मान ली है, तो उन्होंने कार्य समिति से अपील की कि कांग्रेस दल अपने नेताओं के किए वादे को स्वीकार कर लें। वादा यानी विभाजन का प्रस्ताव। भारत विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार करने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का जो चित्र लोहिया ने खींचा है वह काफ़ी दिलचस्प है। लोहिया लिखते हैं कि इस बैठक में आचार्य कृपलानी की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उस समय वह कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। ऊँघते हुए वह कुछ झुककर इस बैठक में बैठे थे कि किसी मुद्दे पर बहस के दौरान महात्मा गांधी ने कांग्रेस के थके हुए अध्यक्ष की चर्चा की और मैंने गहरी झुंझलाहट से उनकी बाहों को जोड़ा। तब उन्होंने बताया कि वह भयानक सिरदर्द से पीड़ित थे। कृपलानी ने विभाजन के विरुद्ध कुछ नहीं बोला था, लेकिन वह विभाजन के विरोधी तो थे। तब गहरे क्षोभ और पीड़ा से भरे हुए थे। उस बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्थिति बहुत अजीब रही। लोहिया लिखते हैं कि इस बैठक के दौरान पूरे 2 दिनों तक हम लोगों को ठसाठस भरे कमरे के एक कोने में एक कुर्सी पर बैठे मौलाना आज़ाद लगातार अबाध गति से सिगरेट का धुआं उड़ाते रहे और एक शब्द नहीं बोले। मौलाना आज़ाद के बाद में दिनों में एक किताब प्रकाशित हुई, इंडिया विंस फ्रीडम, यानी भारत ने जीती आज़ादी। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि जब विभाजन के प्रस्ताव पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चर्चा हुई, तब प्रस्ताव का विरोध करने वाले वह अकेले व्यक्ति थे, लेकिन भारत विभाजन के गुनहगार में लोहिया ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया। लोहिया तो यहाँ तक तंज कसते हैं कि सिगरेट के धुएं के साथ उन्होंने जिस तरह खामोशी से विभाजन को मंजूर किया, शायद उसकी ही वजह से वह दशक भर केंद्र के मंत्री रहे। लोहिया के मुताबिक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सीमांत गांधी खान, अब्दुल गफ्फार खान के बड़े भाई डॉक्टर खान के विभाजन का विरोध करने पर काफ़ी मजाक बनाया गया था। वह पहले और अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने चीखकर प्रस्ताव को पूर्णतः अव्यावहारिक बताया था। खान अब्दुल गफ्फार खान महज 2 वाक्यों में बोले। उन्होंने इस बात पर अपना दुख भी प्रकट किया था कि उनके सहयोगियों ने विभाजन की योजना स्वीकार कर लिया। उन्होंने छोटी सी विनती के रूप में कहा कि प्रस्ताव जनमत गणना के अनुसार भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के इन दोनों विकल्पों के सिवा क्या यह भी जोड़ा जा सकता है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत चाहे तो स्वतंत्र भी रहे। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पटेल और नेहरू आक्रामक रुख दिखाते रहे, जिसके चलते लोहिया भी उनसे भिड़ंत में हार गए। मतलब लोहिया को दोनों का यह व्यवहार तब मनोविकार लगा, मतलब मन की स्थिति खराब होना। लेकिन बाद के दिनों में उन्हें लगने लगा था कि गांधी के प्रति दोनों का अनादर दिखाना कहीं किसी लालच के चलते तो नहीं है। आखिर वह लालच क्या है? सत्ता का लालच। लोहिया इसके लिए मौलाना आज़ाद को ही विवरण का हवाला देते हैं। मौलाना ने लिखा है कि 42 के आंदोलन के दिनों में नेहरू ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल के सदस्य के तौर पर काम करने को तैयार हो गए, जिससे ब्रिटिश योजना के तहत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के मंत्रिमंडल के तौर पर काम करना था। विश्व युद्ध के बाद भारत को आज़ाद कर दिया जाता और वही मंत्रिमंडल देश की कमान संभाल लेता। नेहरू की इस सोच की वजह से लोहिया मानते हैं कि उनका सुभाष चंद्र बोस का विरोध जायज़ नहीं था। उन दिनों सुभाष चंद्र बोस जापान के साथ ब्रिटिश और मित्र सेनाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। नेहरू को सुभाष से ईर्ष्या थी। इसी ईर्ष्या बोध के चलते नेहरू ने ब्रिटिश सरकार की योजना में शामिल होने की तैयारी कर ली थी। लोहिया आखिर में इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इतिहास बोध, जिन्ना की जिद के साथ साथ विभाजन के लिए जिम्मेदार भारत के बुढ़ाते नेताओं की चिंता भी रही। चिंता यह कि अगर आज़ादी का संघर्ष लंबा चला
है ना, तो सत्ता के सुख से वंचित रह सकते हैं। इस तरह भारत का बंटवारा मंजूर कर लिया गया और देश की जनता को बताया गया कि ये तो मुसलमानों ने किया है। ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तानी दिलों की दरार का फ़ायदा उठाने में कामयाब रही थी उस टाइम पर। देश के बंटवारे के लिए पटेल नेहरू ने महात्मा गांधी को छोड़ा अकेला। इस तरह पलटे जिन्ना और देश को तोड़ दिया। अब हम बताते हैं कि सारे जहां से अच्छा लिखने वाले इकबाल कैसे बन गए थे कट्टरपंथी। बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपको बताएं कि आज 10 अगस्त 2023 है, लेकिन एक शख्स तो 6000 ईयर मतलब आज से आने वाले टाइम फ्यूचर साल 6000 से लौट कर आया है। बताया कि भविष्य में कैसे दिखेगी दुनिया, जानकर हैरान रह जाएंगे। तो आजकल नए नए खुलासे हो रहे हैं साइंस के माध्यम से। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो भविष्य की यात्रा करने का दावा करते हैं। अब एक शख्स का दावा ये है कि वह साल 6000 से लौट कर आया है। इस शख्स का कहना है कि वह 3977 साल आगे की दुनिया देखकर आया है। इसके साथ ही शख्स ने कई चौंकाने वाले दावे भी किए हैं। शख्स ने टेक्नोलॉजी और बदलाव को लेकर कई दावे किए हैं। उसने कहा है कि आने वाले समय में हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। स्वघोषित टाइम ट्रैवलर के दावे पर यकीन करना मुश्किल है। शख्स ने दावा किया कि वह भविष्य देख चुका है और दुनिया के लोगों को चेतावनी दे रहा है कि शख्स ने एक वीडियो जारी भी कर दिया है। इसमें दिखाया गया है कि साल 6000 में दुनिया के शहर कैसे होंगे। हालांकि वीडियो में साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आइए जानते हैं इस शख्स ने क्या क्या दावे किए हैं, तो इसकी जानकारी आपको बताते हैं। शख्स की आवाज़ बेहद ही अजीब और वीडियो बेहद धुंधला है और इस अजीबोगरीब वीडियो में शख्स ने दावा किया है कि 1990 के दशक में एक खुफिया योजना बनाई गई थी, जिसका वह हिस्सा यह योजना को भविष्य में भेजने के लिए बनाया गया था। आपको बताएं कि शख्स ने यह भी दावा किया है कि आज से 3977 साल बाद लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले युग में जिएंगे, जहाँ पर तकनीक सरकार दवाएं मॉडर्न ज़िंदगी को पुराने जैसा बनाने का काम करेगी। उसने एक शहर की तस्वीर दिखाई जो देखने पर वाटर कलर पेंटिंग जैसा दिख रहा है और ये शहर इस बात को देख करके कुछ बात को देख करके और समझ के ये व्यक्ति रोने भी लगता है। वह कहता है कि लोगों को यह चीज़ें बकवास लगेंगी क्योंकि शायद वह भी इसी तरह की सोच रखते हैं। उनका कहना है कि वह सिर्फ लोगों को भविष्य के लिए आगाह करना चाहता है। जिस तरह से दुनिया बढ़ती जा रही है और पोल्यूशन बढ़ रहा है, टाइम ट्रैवलर यह बताते हैं कि समय रोने लगा। उसने बताया कि इस प्रयोग के दौरान अपने एक मित्र को पीछे छोड़ दिया जो कभी लौट नहीं सकेगा। हालांकि वह अच्छी तरह और खुश है, अच्छी जगह पर रह रहा है, लेकिन इस बात का दुख है कि उन्होंने भविष्य से वापस आने की कोशिश की तो लौट नहीं पाएगा। उसका कहना है कि साल 2028 तक टाइम ट्रैवल सामान्य ज्ञान हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।